This is the most difficult question of this podcast. Guiding men is a difficult task indeed. Who do you think is more powerful, men or women? So कोई comparison ही नहीं है लड़की और लड़कों में. Obviously the winners are girls and women always. बहुत सारी चीजों का एक amalgamated mixture जो भगवान ने औरतों में दिया है ना, that makes women far more powerful. Women की success में जो barricades type होते हैं, men, other women या उसका खुद का mindset. तो आपके हिसाब से सबसे major challenge क्या होता है women के लिए? I've seen lot of girls being in jealousy with each other. इसने ये क्यों पहना, उसने वो क्यों किया. एक women का सबसे बड़ा दुश्मन I feel is women only. Okay. I don't know why. I mean, जब नारी शक्ति एक साथ हो जाएगी, it can create magic. Hello everybody, welcome back at TVT. We often talk about women empowerment, but we overlook certain challenges, certain things behind that. And today we have on our platform a woman who's not just an entrepreneur, but is an empowerer. So let us welcome Neha ma'am on our platform. Hello ma'am. Hi. So ma'am, if we talk about your journey, how did you get into entrepreneurship and what inspired you towards personality development and English communication? So the first motivation was when I started with a few women in my society. So it was just like a by chance thing कि कुछ मेरे आसपास रहने वाली लड़कियों ने मुझसे बोला कि हमें इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, हम क्या करें, कैसे इस प्रॉब्लम को फेस करें. So I just noticed a few things in their personality. The way they used to carry themselves, the way they used to speak. So कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने ठीक करना शुरू करी and within a week I started getting magical results. उनका कॉन्फिडेंस डबल हो गया, उनको ऑफिस में एक्नॉलेजमेंट मिलने लगा, घर पे एक्नॉलेजमेंट मिलने लगा. They were also very happy. तो वो मुझे मेरे पास आए और बोले थोड़ा और कुछ और इम्प्रूवमेंट करते हैं, कुछ और बताओ. Then I started working on their confidence levels. Then like the way they used to carry their पर्सनैलिटी, कपड़े पहनने हैं तो कैसे, इयररिंग्स कैसे होने चाहिए, साथ में लाइक हाउ यू हैव टू असेसराइज योरसेल्फ. ये छोटी छोटी चीजें चेंजेस करते ही उनको ऑफिस में एक्नॉलेजमेंट मिलने लगा, घर पे हस्बैंड से एक्नॉलेजमेंट मिलने लगा. सो दे वर हैप्पी और उनको खुश देख के मुझे लगा यार I could do something in someone's life. Yes. That was a spark in my life and I decided कि छोटी सी खुशी इनके चेहरे पर is the ultimate happiness that I can also get. So that was the turning point when I started this particular venture where I started helping people in their personality, communication skills. So that's how I started. So since when you started and what you are now, there must have been a lot of challenges because being a woman entrepreneur is very different from a male entrepreneur. Correct. So what were the biggest challenges you faced and were there moments where societal doubts and societal comparisons made you feel self-doubt? Oh, amazing question. सबसे पहले तो being a woman, चैलेंज एक हो तो बात करें. There are so many challenges. घर से ही स्टार्ट हो जाते हैं. Your parents start doubting you. क्या करोगी बाहर जाके, घर पे ठीक तो है, सब सही तो चल रहा है, पढ़ाई करो. थोड़ा सा आगे बढ़ो, शादी हो जाए तो सोसाइटी का प्रेशर, इन लॉस का प्रेशर, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो, बच्चे हो जाएं तो बच्चों का प्रेशर, आप गिल्ट में आ जाते हो कि क्या काम पे जाओ ना जाओ, बच्चों का ध्यान रखो. सो एक चैलेंज नहीं है हम लड़कियों को. देयर आर न्यूमरस चैलेंजेस, बट आई फील ये सब लड़कियों की जिंदगी में लाइक जो भी आज सक्सेसफुल विमेन आपको दिखेगी उसने ये सब चैलेंजेस को हैंडल किया है. सो द डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट हाउ यू फेस देम. जो 100 में से एक ने इसको बोल्डली फेस किया वो आज सक्सेसफुल है. सो आई हैव अ मैसेज फॉर दोज 99 women आउट देयर कि चैलेंजेस आपकी लाइफ में जरूर होंगे. आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, बट be very strong. Always try to get motivated from people who are doing something good. आप देखो वो कैसे handle कर रहे हैं, आप अपना एक रास्ता बनाओ and start working on it. छोटे छोटे steps each day. I'm sure you're gonna get really successful one day. So like now you talked about phases in a life of woman. So अभी जैसे हमने बात करी कि पेरेंट्स का प्रेशर, इन लॉस का प्रेशर, फिर चाइल्ड बर्थ, तो इन चीजों के चलते कभी कभी वुमेन को ब्रेक लेनी पड़ती है अपने करियर से. एंड इफ नाउ दे आर फीलिंग टू गेट बैक इनटू देयर करियर, हाउ कैन दे रीस्टार्ट इट विद कॉन्फिडेंस? ओह, अमेजिंग क्वेश्चन. सी मुझे लगता है हार्डली कोई लड़की होगी जिसकी जिंदगी में ब्रेक वाला फेज नहीं आया होगा. किसी ने शादी के बाद फेस किया होगा, किसी ने बच्चों के बाद फेस किया होगा, किसी ने दोनों फेजेस में इस चीज को, इस सिचुएशन को हैंडल किया होगा. सो
ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपको जो आपकी लाइफ में आएगी तो जरूर, बट द वे यू हैंडल इट, द वे यू कम आउट ऑफ इट, दैट मेक्स अ डिफरेंस. सो आई रियली वांट टू से कि आप द डे यू स्टार्ट योर डिसीजन ऑफ टेकिंग अ ब्रेक, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड इन योर माइंड कि मुझे कम बैक तो करना है, और वो बहुत स्ट्रांग करना है, लाइक अ फिनिक्स. बट फॉर दैट यू शुड हैव अ प्लान इन योर माइंड. See, I also I was also on a break when I gave birth to a baby for like whole 1 year. मैं काम नहीं कर रही थी, बट वो 1 साल because I was mentally prepared कि मुझे वापस कम बैक करना है और वो बाउंस बैक बहुत ही अच्छा होगा, better than the previous one. So I started working on my skills. वो 1 साल मैंने खराब नहीं किया. हर दिन इवन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ उस सिचुएशन में, यू हैव अ बेबी, आपकी खुद की बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रही होती, बट देन I took some courses, AirPods लगा के पूरा दिन सुनती रहती थी, because I really wanted to work on my skills. So I think ये प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, but you should be mentally prepared कि मुझे वापस बाउंस बैक करना है, जिसके लिए start working on yourself. खुद पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय सोसाइटी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती जा रही है. सो अगर हम 1 साल 1.5 साल का ब्रेक ले लेते हैं तो हमको खुद को ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब वापस न्यू टैलेंट के साथ कैसे compete करें. सो कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ. सोच लो कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है अपनी ग्रोथ के लिए, उन पे काम करना शुरू करो, एंड गेट बैक इन द फेज अगेन. That's actually very amazing of us to actually hear that from you, पूरा Thank you. phase. So if I talk about जब इस फेज के दौरान भी या कई बहुत सारे चैलेंजेस के दौरान ना 3 टिपिकल बाइफिकेशंस होती हैं वुमेन की सक्सेस के में, जो बैरिकेड्स टाइप होते हैं, मेन, अदर वुमेन या उसका खुद का माइंडसेट. तो आपके हिसाब से सबसे मेजर चैलेंज क्या होता है वुमेन के लिए? सबसे मेजर, आई थिंक इट्स हार्श, बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी मिलेगी, बट एक विमेन का सबसे बड़ा दुश्मन आई फील इज विमेन ओनली. आई डोंट नो व्हाई. आई मीन आई हैव सीन लॉट ऑफ गर्ल्स बीइंग इन जेलसी विद ईच अदर. इसने ये क्यों पहना, उसने वो क्यों किया. मुझे लगता है जिस दिन हम ये क्या पहना क्यों पहना की जगह यार सक्सेसफुल कैसे हो, तू क्या पढ़ रही है, या तुमने आगे कैसे ग्रोथ प्लान बनाए, इसके बारे में बात करने लग जाएंगे ना, जब नारी शक्ति एक साथ हो जाएगी, इट कैन क्रिएट मैजिक. सो आई हैव अ मैसेज फॉर ऑल द women out there, help each other, let's grow, let's evolve. ये सब बातें गॉसिप की जगह अगर हम ग्रोथ की बात करने लगे ना, the results are going to be magical. And second, I think it's mindset. सो आदमी, मैन तो मुझे लगता है दूर दूर तक कहीं लाए नहीं करते हमारी सक्सेस में. अगर हम अपने माइंडसेट में स्ट्रांग हैं और आपस में हम सारी विमेन एक दूसरे को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, देन वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर. So like it is important to have a women's only community. Yes, Nari Shakti. Yeah. So if I talk about your life, your journey, what were the life lessons that your struggles taught you, that you think can other women can resonate with you from that? So there was a time, life lessons की बात करें तो there was a time I used to feel मेरे साथ ही इतनी problems and hurdles क्यों होते हैं. मुझे ऐसा लगता था हर थोड़े से स्टेप पे सबकी लाइफ स्मूथ है, ऑल माई फ्रेंड्स आर हैंडलिंग थिंग्स वेरी स्मूथली, बट एक मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो जाती थी. सो देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू गेट रियली अपसेट, व्हाई ओनली मी. कई बार मैं गॉड से कंप्लेन भी करती थी कि मुझे क्यों चूज करते हो, बट टुडे आई फील प्रिविलेज्ड कि उन्होंने मुझे चूज किया. जितनी बार भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, उतनी बार मुझे लगता है मैं और स्ट्रांग बनी. तो टेक ऑल योर चैलेंजेस एज अ सक्सेस प्लान, जो शायद भगवान आपको स्ट्रांग बना रहा है. बिकॉज जितनी प्रॉब्लम जिसको दे रहा है, ये बात श्योर है उसको आगे उतनी बड़ी सक्सेस देनी है. सो अब मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, मैं सोचती हूँ अच्छा ये तो छोटी प्रॉब्लम है, थोड़ी बड़ी आनी चाहिए थी, बड़ी सक्सेस मिलेगी. सो दैट मीन्स मुझे लगता है चैलेंजेस, प्रॉब्लम सबकी लाइफ का पार्ट है, आ रही है, इसको इजीली एक्सेप्ट करो, ट्राई टू कम आउट ऑफ इट, एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर माइंडसेट, बी ऑप्टिमिस्टिक कि इससे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है. कुछ नहीं तो मैं बहुत कुछ सीखने वाली हूँ. सो जैसे अभी आपने पॉजिटिविटी की बात करी है, कई बार ऐसा होता है ना कि एक वुमेन की लाइफ में शी इज ऑफन फोर्स्ड टू लिव इनसाइड अ बबल, constant pressure, opinion, societal criticism. How should women manage that point of view in their life? So talking about criticism, I feel आप कितना भी अच्छा कर लो, आप काम पे जाओ, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, अरे बच्चों को घर छोड़ के काम पे जा रही है. आप घर पे रहो, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, इतना पढ़ लिख के घर पे बैठी है. Always someone out there in the world who is not happy with you.
सो आप सबको खुश तो कभी नहीं कर सकते. बट देर इज वन मंत्रा दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम माई लाइफ लेसन. हेल्प योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ हैप्पी. दुनिया अपने आप खुश होगी. अगर एक लड़की खुश है, एक माँ खुश है, एक वाइफ खुश है, फैमिली अपने आप हैप्पी रहेगी. एक अनहैप्पी वाइफ, अनहैप्पी मदर कभी भी एक हैप्पी फैमिली नहीं बना सकती है. सो आई फील दुनिया की छोड़ो, खुद को खुश करो पहले. इफ यू आर हैप्पी, यू आर गोइंग टू गिव हैप्पीनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. सो जैसे अभी हम वुमेन्स की बात कर रहे हैं, वी ऑफन हियर टर्म्स वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म. सो इफ आई आस्क यू, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वुमन? पहले मैं ये सोचती थी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वो है जो लोगों से फाइट कर लेती है, जो लोगों से लड़ाई कर लेती है, चलते फिरते रास्ते में किसी ने कुछ कहा तो उसको उल्टा जवाब दे देती है. बट धीरे धीरे विद एज I have realized a strong woman is not someone who fight with others. A strong woman is someone who fight with her own insecurities, own fears, own flaws and start working on it. Because see, nobody is perfect. But जो इंसान ये जान लेता है कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, मेरे फ्लॉज क्या हैं और उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, समझ लो वो सक्सेस के बहुत करीब है. सो आई थिंक दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वुमन. नेवर compete with anyone, compete with yourself. देखो अपने अंदर क्या क्या कमियां हैं, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड सक्सेस बहुत पास है फिर. So if I talk about one common hurdle which many women in their later ages face, that is communication. So do you think somewhat financial independence can become easier when communication is strong? So see, it's not only about communication skills. आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है. कम्युनिकेशन, गुड इंग्लिश, फ्लुएंसी may open doors for you. But then when you have to walk through that lane, for that it's not only communication. There are lots of things that matters like courage, confidence, clarity of thoughts. So ये एक amalgamated I think 5 C's हैं यहाँ पे, जो कि clarity, courage, confidence, communication and the way you carry yourself. So इन पांचों का एक perfect amalgamation can lead you a successful path towards financial independence. खाली communication सीख भी लोगे आप, पता है आप में confidence नहीं है, आप अपनी बात को कह ही नहीं पा रहे हो, you're having lack of confidence, उसका क्या फायदा? So being a communication coach, but I still say confidence is the key to success. आपको बोलना आना चाहिए. It's just a language. See, our Prime Minister, प्रधानमंत्री मोदी जी, वो हार्डली कभी इंग्लिश बोल रहे हैं, राइट? बट वो हिंदी में बोलते हैं, बट उनकी स्किल्स, द कॉन्फिडेंस ही कैरीज, ये सब मैटर करता है. सो आई थिंक इंग्लिश, ये सारी चीजें एक लैंग्वेज है, जस्ट अ मीडियम टू एक्सप्रेस योर थॉट्स. बट द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज how confident you are, how clear you are in your thoughts. That matters the most. Since we are talking about languages here, लोगों के दिमाग में अक्सर ये होता है कि English is more of impressing others than expressing. But like if I talk about myself, for example, I often feel English makes me feel more confident and more expressive, but people sometimes associate it with more of a flex or show off. What do you think about that? See, I think English may impress people. Good English, good communication skills may impress people, but confidence leaves an influence. So it's just a medium. हाँ, मैं जान रही हूँ आजकल की सोसाइटी में थोड़ा सा फ्लेक्स और शो ऑफ ये सब हो गया है, बट आप कितना भी अच्छी इंग्लिश बोलो, आप थोड़ी ही देर में पहचान जाओगे इंसान में दम नहीं है, अगर उनकी बातें, द वे ही स्पीक्स, थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ये सब अच्छे नहीं है तो. सो एक पार्ट है इंग्लिश कम्युनिकेशन इस ट्री का, but not the only part. I feel. So next one I would ask is, that might be trigger somebody, but who do you think is more powerful, men or women? Oh, amazing question, especially on this Women's Day. I think a woman indeed is. See, if we talk about physical strength, of course, men, they are more powerful. But आप सिर्फ physical strength से ये दुनिया नहीं चला सकते हो. So बहुत सारी चीजों का एक एमैलगमेटेड मिक्सचर जो भगवान ने औरतों में दिया है ना, that makes women far more powerful. Like a woman can keep a child in her womb for 9 months, can give birth, after giving birth can earn for that child, can make food for that child. हर वो चीज बाहर
खेतों में जाके काम कर सकती है तो घर में भी काम कर सकती है, पैसा कमा सकती है तो खाना भी बना सकती है। इन सब चीजों के अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टेकिंग केयर ऑफ इमोशंस ऑफ अ चाइल्ड, ऑफ हर हस्बैंड। कितनी बार आई हैव सीन लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर जो बोलती हैं कि मेरे दिल की बात मेरे हस्बैंड समझ ही नहीं पाए, लेकिन लड़कियां तो समझ जाती है ना दिल की बात अपने हस्बैंड की। सो ये इमोशनल केयर, ये सब भगवान ने इनबिल्ट लड़कियों को ही दिया है। सो कोई कंपैरिजन ही नहीं है लड़कियों और लड़कों में। ऑब्वियसली द विनर्स आर गर्ल्स एंड वुमेन ऑलवेज। सो जैसे अभी आपने बात करी कि घर पे भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं. इफ आई टॉक अबाउट हाउसवाइफ्स इन जनरल, at some point now they feel like they want to do something professionally, they want to move forward. So where do you think they should start from? The point where they can gather the courage without getting affected by the influence near them. They can gather the courage to move ahead even if it is now very late. Technically that's not very late. No, there's no age to start, even if she's in her 40s or 50s. So what advice would you give to her? Thinking of this question, I'm getting an example in my mind. Founder of Nykaa, Falguni Nayar ma'am. Yeah. She was in her 50s when she started this venture, and today she's so successful. Also, there is one more example that is coming in my mind. Founder of KFC, Colonel Sanders. He was also in his 60s when he started this venture, and then it became a super hit. So I think age is never a barrier. आपका माइंड कभी रिटायर नहीं होता. सो इट्स ऑलवेज यू नो द करेज, द कॉन्फिडेंस दैट आई कैन डू दिस. सो वही आई थिंक मैटर करता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स इज डरो मत हार से. क्योंकि जब आप मार्केट में निकलोगे, फील्ड में काम करने निकलोगे, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, फेलियर्स तो आएंगी. अब डिफरेंस क्या है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान में, कि अनसक्सेसफुल इंसान 1 या 2 हार्डली 3 फेलियर से डर जाता है कि अब तो फाइनेंसेस नहीं है, या सोसाइटी क्या बोलेगी, घर वाले क्या बोलेंगे. वहीं ऑन द अदर हैंड 100 में से एक जो सक्सेसफुल होता है ना, वो इन सब चीजों से डरता नहीं है. वो सोचता है चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक बार और, वन मोर टाइम. सो मुझे लगता है एज इज नेवर अ बैरियर. यू स्टार्ट फ्रॉम द डे यू फील यू आर रेडी, एंड वंस यू स्टार्ट फिर रुकना नहीं. कितने भी हर्डल्स आए लगे रहो, एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी. तो जैसे वुमेन की ही अगर हम आगे बात करें, शी इज ऑफन जज्ड एट हर ओन होम by her family, by her relatives, sometimes for not speaking English, sometimes for this lack of a skill or something. So what would you tell the family, the relatives, if they are watching it right now, that how to give space to women to be herself, to encourage her to be better? So how would you do that? See, I feel society और family को तो मैं कभी समझा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो कभी भी दूसरे का पेन कोई नहीं समझ सकता, कोई भी कभी दूसरे का माइंडसेट नहीं समझ सकता. एंड ऑल्सो आई फील एक इंडिविजुअल को भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सोसाइटी मेरे लिए चेंज हो या मेरी फैमिली मेरे लिए चेंज हो, ये मेरी प्रॉब्लम समझे. नोबडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड अदर्स पेन. सो सबसे पहला मुझे लगता है यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रॉब्लम एरिया, कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. क्या ये आपको हेल्प नहीं करे, फाइट फॉर इट. आपको लगता है कि नहीं ये लोग तो हेल्प कर रहे हैं, मैं ही स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ, डर लग रहा है, देन फाइट विद योरसेल्फ. अपनी इनसिक्योरिटीज से फाइट करो, कॉन्फिडेंट बनो. बिकॉज आई रियली फील अ वुमेन हु स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, वर्ल्ड लिसन्स डिफरेंटली. सो आप अपनी आवाज बोलना शुरू करो, आप अपने थॉट्स रखो, देखो दुनिया अपने आप चेंज होगी. वो लोग जो आज बात बना रहे हैं वही सब क्लैप करेंगे. सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम पीपल. लोग चेंज हो, कोई चेंज नहीं होगा हमारे लिए, हमें खुद को चेंज होना पड़ेगा. तो जैसे ये तो वुमेन का पर्सपेक्टिव हो गया. अब हम अगर मेन के पर्सपेक्टिव पे आए, हम वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म की बातें बहुत करते हैं, बट वी रियरली गाइड मेन हाउ टू अंडरस्टैंड वुमेन बेटर, हाउ टू एक्चुअली एनकरेज हर टू बी हर सेल्फ, टू बी बेटर, एंड टू हेल्प हर, सपोर्ट हर. बिकॉज इन जनरल वुमेन डोंट नीड हेल्प, बट दे नीड अ सपोर्ट, अ शोल्डर to which they can move ahead. So how would you guide men on that? This is the most difficult question of this podcast. Guiding men is a difficult task indeed. I think this all comes internally. एक आदमी जिससे सच्चा प्यार करता है ना, these emotions come automatically. But हाँ, किसी को समझाना और सिखाना
मुझे लगता है आप कर सकते हो 2 days 3 days, बट इंसान का जो बेसिक नेचर है ना, दैट कम्स बैक. सो आई रियली फील आप स्टॉप एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम मेन, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ. जिस दिन आप सक्सेसफुल हुए ना, वही आदमी जो आपके इमोशंस नहीं समझ रहा है, द डे यू हैव मनी इन योर पॉकेट, वही आदमी आपको सलाम देगा, वही आदमी आपके पैरों में झुकेगा. सो आई फील एक अपनी पोजीशन, लाइक आपको खुद अपनी आंखों में एक अच्छी इमेज होनी चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ. बहुत सारी लड़कियां, मैं उनसे ऐसी लड़कियों से मिलती हूँ जो कि एक जिंदगी से गुजरे जहां उन्हें लगता है मैं और बेटर कर सकती हूँ, आई हैव पोटेंशियल, मैं ये कर सकती थी, मैं अपने स्कूल में टॉपर थी, कॉलेज में टॉपर थी, बट मैंने सब चीजें सैक्रिफाइस कर दी अपनी फैमिली के लिए, और आज मेरी फैमिली मुझे एक्नॉलेज नहीं करती है. आपके अंदर खुद गिल्ट है कि आप कर सकते हो लेकिन आप कर नहीं रहे हो. अब आप चाह रहे हो उस गिल्ट को आदमी लोग रोज इमोशनली आपको पैम्पर करके बोलें कि हाँ तू कर सकती थी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. एक दिन 2 दिन कोई कर सकता है. सो एक्चुअल एरिया देखो आप कहाँ प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम हम में खुद है कि हम उस गिल्ट से गुजर रहे हैं. आप उस पे काम करो ना, छोड़ो आदमी क्या आपको उस पे रिएक्ट करेगा. यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ. आप 2 दिन 3 दिन स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स. आपकी एक अच्छी जॉब लगी या आप कहीं अच्छे से सक्सेसफुल हुए, वो सब लोग जो इज्जत नहीं दे रहे बहुत इज्जत देना स्टार्ट हो जाए. दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ सेज. सो आई फील स्टॉप एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम सोसाइटी. सोसाइटी अपने आप चेंज होती है. आप सक्सेसफुल हो और आप देखो कैसे हर वो इंसान जो एक दिन क्रिटिसाइज कर रहा था, वो सब आपको झुक के सलाम करेगा. तो जैसे भी आपने गिल्ट की बात करी कि वुमेन को कई बार गिल्ट होता है कि हमने सही टाइम पे स्टार्ट नहीं करा, बट एक ऐसा फेज होता है चाइल्ड बर्थ वाला. शी इज जस्ट गिवन बर्थ थ्रू अ बेबी. अब उसको चूज करना पड़ता है किस साइड, अपने प्रोफेशनल करियर की तरफ जाए या अपने बेबी पे ध्यान दे. किसी भी तरफ जाएगी, दूसरी तरफ का गिल्ट उसके साथ रहेगा ही रहेगा. तो आपको क्या लगता है उस फेज में उसको कैसे मूव अहेड करना चाहिए? सी आई थिंक ये ऑलमोस्ट हर लड़की इस फेज से गुजरती है. इवन आई वेंट थ्रू इट. सो फॉर होल 1 year आई वाज लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैं ये साल अपने बच्चे को ही देना चाहती हूँ. सो पहला तो आप खुद एक माइंड सेटअप कर लो कि आप क्या ये अपनी चॉइस से कर रहे हो, कि आप चाहते हो इस टाइम को एंजॉय करना, क्योंकि दैट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ फीलिंग जो एक लड़की महसूस कर सकती है बस. सो अगर आप अपनी चॉइस से कर रहे हो तो फिर कोई उसके बाद क्रिब नहीं करना. 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी आपको लगता है. बट इफ यू फील, जरूरी नहीं है हर लड़की चॉइस से एंजॉय कर सकें, किसी की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, ऐसा कुछ है, देन स्टार्ट बैलेंसिंग थिंग्स. फिर आपको बुरा बने या अच्छा बने, आपको अपने फैमिली के मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी. इवन इफ योर मदर इन लॉ इज नॉट इन द फेवर ऑफ इट, और घर का कोई मेंबर इज नॉट इन द फेवर ऑफ इट, आप बुरे बनो आज, 4 दिन बाद सब ठीक हो जाता है. आप जॉब पे जाओगे, पैसे लेके आओगे, सब ठीक हो जाता है. तो इतना मेरे ख्याल से इमोशनल वाले मोमेंट में अगर हम दिल से ही सोचते रहेंगे तो फिर पूरी जिंदगी रिग्रेट करते रहेंगे कि मैंने वो ब्रेक लिया, मेरा उस समय किसी ने साथ नहीं दिया, और जिसकी वजह से मैं आज वो नहीं कर पाई जो मैं कर सकती थी. जो कि हमारे इंडिया की मोस्टली 90% वुमेन जिस गिल्ट से गुजर रही है. अगर मैं 100 लेडीज से मिल रही हूँ लेट्स से, उसमें 90 का यही प्रॉब्लम है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत सक्सेसफुल थी, सब छोड़ दिया मैंने. बट ये रोना कितने दिन रो सकते हो, कितने लोगों के आगे? 4 दिन 5 दिन, छठे दिन आपके घर के लोग भी इरिटेट होने लग जाएंगे. सो आई थिंक प्रॉब्लम सबकी लाइफ में सेम है. यू शुड लर्न हाउ टू कम आउट ऑफ इट. तो जब आप उस फेज में हो ना, आप मेंटली स्ट्रांग रहो कि मेरे को वापस तो बाउंस बैक करना है, और बाउंस बैक करने के लिए अपनी स्किल्स पे काम करो. उस टाइम को वेस्ट मत करो. वो आधा 6 महीने, आधा साल, 1 साल, जो भी है, लेट इट बी. कुछ ना कुछ स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ. आजकल डिजिटल एरा है, सब कुछ ऑनलाइन है. एक कोर्स खरीदो, कान में लगा के सुनो खाना बनाते बनाते, देन ऑल्सो यू कैन डू इट इफ यू हैव विल टू डू इट. आई थिंक आई ऑलवेज फील लड़कियों को एक मेरा बड़ा डीप हार्टेड मैसेज है, प्लीज रोना न धोना नहीं, नेवर एवर इन लाइफ. जो भी मन है स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. मेहनत करो थोड़ा, ईच स्टेप अ डे. किसी दिन नहीं पढ़ाई हो पाएगी, किसी दिन दो क्लासेस देख लोगे, किसी दिन 4, किसी दिन 1 भी नहीं पाई, बट कुछ तो किया. मतलब something you're doing for yourself, that's necessary in today's world. So bringing this to an end,
if right you had to give message to women out there who feel unheard or restricted or self doubt, what would you tell her right now? One thing that I would like to say to all the women out there, please become a little selfish. I have seen women say, आज हम 5 couples जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में to enjoy a meal or a dinner. I have seen women saying, आप बताओ क्या खाओगे, आप देख लो अपने हिसाब से ऑर्डर कर लो. क्यों? Why don't you have your say on it? Like express yourself. जो भी आपके मन में आपके इमोशंस हैं, जो आप कहना चाहते हो, बोलना सीखो. मतलब बहुत सारी लड़कियां मैंने देखी हैं जो अपने इमोशंस को ना अंदर ही अंदर दबा के रखती हैं, बोलती नहीं है, और वो दबे हुए इमोशंस एक ना एक दिन तो निकलते हैं, वो अलग फॉर्म में निकलेंगे. लड़ाई होगी, आप फ्रस्ट्रेट होगे, आप डिप्रेस होगे, एंजाइटी, स्ट्रेस, यू आर हार्मिंग, हैम्परिंग योर हेल्थ. व्हाई टू डू दैट? मतलब आई रियली फील यू शुड बिकम एक्सप्रेसिव. जो भी आपके मन में, आप बोलना सीखो. दूसरा, आप अपने फ्लॉज पहचानो. नोबडी इज़ परफेक्ट ऑन दिस अर्थ. नेवर फील कि अरे भाई मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैंने तो बहुत पढ़ाई करी हुई है, बट अब मैंने बच्चों के लिए छोड़ दिया. अभी तो आप ब्रेक पे हो ना. आप देखो अभी क्या स्किल की ज़रूरत है, जो आपके अंदर कमी है, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड चलो काम पे निकलो. द मोमेंट आपने स्किल पे काम किया, देन डिजिटल एरा है आज. आप छोटी सी एक वीडियो भी बना लोगे ना, 1 day 2 day 3 or 4 days आपको अपने आप इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा. 15 days में मे भी हिट हो जाए, यू नेवर नो. सो आप बिल्कुल, इवन इफ लाइक यू आर अ होम मेकर, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप इंटैंगल्ड हो. बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी में ऐसा है कि बच्चे हैं, फैमिली है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो. सो आप खाना तो बना रहे हो, खाने बनाने की वीडियो डाल दो. आप कुछ स्टिचिंग कर रहे हो, उसकी वीडियो डाल दो. क्रोशे, एनीथिंग. आजकल सब रैंडम हिट हो रहा है. एटलीस्ट यू विल फील एक्नॉलेज्ड, एटलीस्ट यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. और एक स्टेप आपकी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस का होता है ना, आपको और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं तो कर सकती हूँ. सो वो स्पार्क तभी आएगी जब आप कुछ ना कुछ करोगे. 10 गलत स्टेप में एक तो हिट जाएगा, राइट? सो बट फॉर दैट कुछ करना पड़ेगा. खाली हमेशा हम गिल्ट में रह के या रो के आगे नहीं बढ़ सकते. जितनी भी विमेन आज सक्सेसफुल है ना, सबकी ज़िंदगी में फेलियर्स आए हैं, बट वो रुकी नहीं, करती रही. एक स्टेप, सेकंड, थर्ड पे हारे, फोर्थ, एक ना एक दिन हिट होता है. सो दैट्स व्हाट इज माय मैसेज टू ऑल द विमेन. रोना धोना नहीं, बी वेरी कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेस योर सेल्फ. जो मन में है वो बोलो. एंड थर्ड, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स एंड कम आउट इन मार्केट सॉलिड. Don't wait for the right time. Don't wait for the right time. Right time कुछ है ही नहीं. जिस दिन आप रेडी हो वो right time है. Thank you so much, ma'am. This conversation was personally very inspiring for me as well. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इससे. Thank you so much. Thank you so much.